The Civil Aviation Ministry has held its first media briefing after the tragic crash of Air India 171 flight. The briefing was held by Civil Aviation Minister Ram Mohan Naidu and Civil Aviation Secretary Sameer Kumar Sinha. The Air India Boeing 787 Dreamliner flying from Ahmedabad to London Gatwick crashed shortly after takeoff with 242 people on board. The aircraft went down in Meghani Nagar, a densely populated neighborhood just outside the perimeter of the Sardar Vallabhbhai International Airport. Well, thick fumes of smoke rose from the crash site. Amongst the deceased, of course, was the former Gujarat Chief Minister Vijay Rupani, who was en route to London. Most passengers were Indian nationals, although there were 53 British nationals, 7 Portuguese nationals and 1 Canadian national on board as well. Remember, after the crash, there has only been 1 survivor. Jatin Raval is joining us for more details on this story. Jatin, the Civil Aviation Ministry has held its first detailed briefing after this crash of the AI 171 flight. Take us through the highlights of what the Civil Aviation Minister and the Secretary, Ministry of Civil Aviation, said. They, of course, spoke about the investigation, the committees that have been formed, and also the need now to surveil this particular aircraft, the Boeing 787 Dreamliners. देखिए, बिल्कुल जो नागरिक जो उड्डयन मंत्री हैं उनके द्वारा अभी थोड़ी देर पहले ही जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन जो है वो किया गया था। जिस तरह से जो अहमदाबाद के अंदर जो प्लेन दुर्घटना का जो मामला जो है वो सामने आया था, उसको लेकर ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसका आयोजन किया गया था। हालांकि अभी एक ऐसी बातें भी जो है वो सामने आ रही है कि जो प्लेन जो ये एयरबस थी, जो 787 जो ड्रीमलाइनर जो एयरबस थी, उसका नाम जो AI 171 था, वो अब जो है वो बंद कर दिया जाएगा। हालांकि उसकी बुकिंग जो है वो शुक्रवार से ही बंद कर दी थी। अब उसका नाम वो AI 159 यानी कि 159 जो नाम है इसका, वो रखा जाएगा। अब इसको ये बहुत बड़ा ये फैसला है। AI 171 का नाम जो है अब बदल कर 159 जो है वो रखा जाएगा। फिलहाल अभी उन्होंने ये भी बताया कि जांच जो है पूरी तरह से अभी भी जो है वो चल रही है। जांच के बाद पूरा जो रिपोर्ट होगा वो बनाकर जो है वो सामने सबके सामने जो है वो पेश किया जाएगा। जी, कुछ और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, बने रहिए आप हमारे संग। There are multiple teams in Ahmedabad investigating the crash site, including the NSG, the NDRF, FSL teams as well. Cranes have now reached the spot to remove the tail end of the plane. Cranes have arrived at the crash site. Jatin, what can you share with us? बिल्कुल, अभी भी कुछ मलबे हटाने बाकी है और उसी की वजह से थोड़ी देर पहले ही जो है क्रेन को वहां पर जो है वो ले जाया गया, क्योंकि जो मलबा है अभी भी बहुत सारी जगह पे अभी थोड़ी देर पहले ही एक ऐसे में और भी जो दूसरा भी जो मलबा है वो हटाने के लिए, जो भारी मलबा था उसको हटाने के लिए क्रेन को जो है वो साइट के ऊपर बुलाया गया है। क्रेन साइट पर पहुंच चुके हैं। मलबा हटाने की कामगिरी जो है वो चल रही है। माना जा रहा है कि अभी भी वहां से हो सकता है या तो मानव अवशेष या तो मृतदेह मिलने की पूरी गुंजाइश है। उसी की वजह से पूरा एरिया जो है अभी क्लीन करने की जो तैयारियां है वो NDRF SDF की टीम के द्वारा जो है वो चल रही है। जी बिल्कुल जतिन, बने रहिए आप हमारे संग। According to reports, Air India and Air India Express have decided to discontinue flight number 171 following the Boeing 787 Dreamliner accident that claimed 241 lives in a tragic crash in Ahmedabad. Let me quickly join Jatin Raval for more on this story. Jatin, the airline has decided to retire flight number 171? जो एयर इंडिया है उसने ऑफिशियली ये डिक्लेयर कर दिया है कि जो ये प्लेन जो क्रैश हुआ अहमदाबाद के अंदर मेघानी नगर में, जो प्लेन क्रैश की जो दुर्घटना जो है वो सामने आई, उसको लेकर एयर इंडिया ने डिसाइड कर लिया है, ये तय कर लिया है कि अब से AI 1 बदलकर जो है AI 169 जो है वो रखा जाएगा। अब जो AI 171 की नाम से जो फ्लाइट थी उसका नाम अब बदलकर जो है AI 159 जो है वो रखा है, क्योंकि इस तरह से AI 171 जो अहमदाबाद से लंदन के जो फ्लाइट जा रही थी
जिसकी दुर्घटना हुई, जिसमें 275 लोगों ने जो है अब तक इसमें जान गंवाई है, जिसमें 242 जो यात्री सवार थे, इसमें से 241 लोगों की मौत हुई है। साथ ही साथ जो वहाँ पर जो रेसिडेंट जो डॉक्टर इंचार्ज जो डॉक्टर रह गए थे, उनकी इसके अंदर इस दुर्घटना में जान गई है। उसी की वजह से एयर इंडिया ने इतना बड़ा फैसला जो है वो लिया है कि अब से AI-171 का नाम बदलकर AI-159 जो है वो रखा जाएगा। जी बिल्कुल जतिन, बने रहिए आप हमारे संग। कुछ और इस वक्त बड़ी जानकारी हमें मिल रही है। A total of 213 blood samples have been collected by the Ahmedabad Municipal Hospital authorities on Friday for DNA testing as part of the process of identifying the bodies. Authorities have also said they've informed the families of those who were traveling on the Air India flight that crashed. Jatin Raval is live with us on this big story. Jatin, all the families now of the victims of this AI-171 crash have been informed by the airline. Meanwhile, a lot of the DNA samples have been collected, over 200 in fact, Jatin, by yesterday. जी देखिए बिल्कुल आपको बता दूं, डीएनए सैंपल है तकरीबन 269 के ज्यादा जो डीएनए सैंपल है वो कलेक्ट कर चुके थे और आज भी कुछ डीएनए सैंपल जो वो कलेक्ट किए जा रहे हैं। डीएनए सैंपल मिलने के बाद स्वयं जो आज सुबह से वैसे तो डीएनए टेस्टिंग जो है सैंपल जो भी मिल चुके थे उनकी डीएनए टेस्टिंग जो है आज गांधीनगर पे FSL यानी कि फॉरेंसिक जो साइंस लेबोरेटरी है वहाँ पर और नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी इन दोनों जगह पर जो है इसकी जो डीएनए की जो टेस्टिंग है वो शुरू कर दी गई थी। गृह राज्य मंत्री अभी थोड़ी देर पहले ही जो है वो वहाँ पर पहुंचे थे। उन्होंने पूरी बात का जो है वो निरीक्षण किया और जिस तरह से जो डीएनए टेस्टिंग चला था उसको देखते हुए उन्होंने ये बताया कि ये पूरी फास्ट ट्रैक में ये अभी फिलहाल जो है टेस्टिंग जो है वो चल रहा है। जल्द से जल्द ये डीएनए जितने भी सैंपल आ चुके हैं इनका जल्द से जल्द रिपोर्ट जो है वो सामने आ जाएगा। जी बिल्कुल जतिन, कुछ और इस वक्त बड़ी जानकारी हमें मिल रही है। Professor of Surgery at BJ Medical College, Dr. Rajneesh Patel has said that results of 6 passengers have come out. Their families have been informed. Out of them, the families of 2 of the deceased have arrived to collect the mortal remains. Jatin, has the hospital now began releasing the bodies to some of those whose DNA samples have matched the families of the victims? जी देखिए बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि लोगों के डीएनए सैंपल पहले ही जो है वो मिल चुकी है। परसों शाम से ही डीएनए सैंपल जो है वो मंगवाने की बात जो है वो कर दी गई थी। डीएनए सैंपल मंगवाने की शुरुआत कर दी गई थी। जिन लोगों के डीएनए सैंपल जो है वो पहले जो है वो आ चुके होंगे उन सारे लोगों के डीएनए टेस्टिंग हो चुका होगा, जिनके डीएनए मैच हो चुके होंगे रिपोर्ट आने के बाद। तो ऐसे फैमिलियों को प्रशासन के द्वारा जो अस्पताल के प्रशासन द्वारा जो उनको बुलाकर जो है उनकी जो मृतकों को उनके परिजनों मृतकों के परिजनों को उनकी बॉडी जो है वो देने की प्रक्रिया जो है वो चल रही है। हालांकि कल तक अगर बात करें तो कल तक 9 मृतदेह जो है वो सौंपे गए थे। ऐसी बातें जो है वो अभी तक सामने है। ऑफिशियल अभी कुछ डिक्लेयर नहीं किया कि कितनी बॉडी जो है वो दी है, लेकिन 8 से 9 बॉडी जो मृतदेह जो है वो उनके मृतकों के परिवार जनों को जो है अब तक सौंपी गई है। आज हो सकता है अभी थोड़ी देर के बाद जिस तरह रजनीश पटेल का जो बयान आया है डॉक्टर का, तो उसके बाद लगता है कि एम्बुलेंस लगातार हमने देखा कि जो अहमदाबाद सिविल अस्पताल जो 1200 बेड और ट्रॉमा सेंटर के बीच का जो ग्राउंड है उस ग्राउंड के अंदर तकरीबन 100 से भी ज्यादा एम्बुलेंस जो है वो लगाई गई है। और एम्बुलेंस इसीलिए लगाई गई होगी जब भी जिन लोगों को भी उनका जो मृतकों के स्वजनों की उनकी बॉडी दी जाएगी उनको उसी एम्बुलेंस में हो सकता है कि उनको वही उसी में बिठाकर तो उनका घर होगा वहां तक एम्बुलेंस में ही उनको ले जाया जाए। ऐसी माहिती जो अभी फिलहाल सूत्रों के माध्यम से कभी ऑफिशियली कुछ भी अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह से एम्बुलेंसों की कतारें जुड़ी सिविल अस्पताल के अंदर लगी हुई है उसको देखकर ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि बॉडी डेट जिन लोगों का डीएनए मैच हो गया होगा उनको उनके मृतकों के परिवारजनों को उनकी बॉडी जो है वो दी जाएगी और एम्बुलेंस के अंदर भी उनको उनके गंतव्य स्थान तक जो है वो पहुंचाया जाएगा। जी कुछ और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। The Civil Aviation Ministry has announced that it will conduct extended surveillance of all Boeing 787 aircrafts currently operating in India following the recent Air India crash near Ahmedabad airport. Big news coming in, Jatin. The Civil Aviation Ministry now will scrutinize and surveil all Boeing 787 Dreamliners currently operating on routes within or outside India, Jatin.
जी देखिए बिल्कुल तो एयर इंडिया के जो सीईओ है विलेंस विल से कैपेबल व्हील्स है, उन्होंने बताया था कि जो 787 है उनकी पूरी जांच जो है वो की जाएगी। हालांकि अब ऑफिशियल तौर पर जो है वो स्टेटमेंट जो है उनका जो है सामने एक आया है कि जितने भी 787 जो बिग फाइटर है उसकी पूरी जांच की जाएगी, या तो उनको पूरी तरह से बंद किया जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा हादसा जो है वो माना जा रहा है। ये सिर्फ गुजरात की बात नहीं है, देश की बात नहीं है, लेकिन विदेश तक ये सबसे बड़ी अब तक की जो दुर्घटना है वो जो है वो मानी जा रही है। गुजरात में पहले 1988 में एक जो प्लेन है वो क्रैश हुआ था, जिसमें 133 लोगों की जान गई, जहां पर 275 लोगों की जान गई। अभी भी सब जो है अभी भी मृतदेहों को जो है वो जहां पर जो अकस्मात हुआ था वहां से अभी भी मृतदेहों को निकाला जा रहा है। हो सकता है इससे अभी भी आंकड़ा जो है वो बढ़ सकता है, इसीलिए इसकी वजह से बड़ी गंभीर दुर्घटना को देखते हुए जो ये फैसला जो है वो शायद लिया गया हो, ऐसा माना जा रहा है। कुछ और इस वक्त हमें जानकारी मिल रही है जतिन। सिविल एविएशन मिनिस्टर राममोहन नायडू has given the high level committee a total time of 3 months to collect crucial evidence, including speaking to key stakeholders and eyewitnesses. So a time frame has been set, Jatin, for this high level committee. 3 months time has been given by the minister. जी देखिए बिल्कुल आपको नायडू जी है, जैसे ही जो अकस्मात हुआ था उससे तकरीबन 2 या 2.5 घंटे के अंदर जो वो जगह पर वो जो है वो तुरंत ही जो है वो पहुंच गए थे। उन्होंने उस वक्त भी ये दौरा जो है वो किया था। उसके बाद जो जिस तरह मैंने अभी बताया था कि उच्च स्तरीय बैठक का जो आयोजन जो है उनके द्वारा किया गया। 3 महीनों का जो समय है वो दिया गया है। उसके अंदर पूरी जांच जो है वो करने के आदेश जो है उनके द्वारा जो है वो फिलहाल किए गए हैं। लेकिन देखना यह कि इतने समय में किस तरह से ये सारी चीजें जो है वो निकल कर आती है। जैसे कि जो कैपेबल व्हील्स ने भी 30 दिन का रजिस्ट्रेशन जो है जो एयर इंडिया के द्वारा जो जितने भी जो एयर इंडिया के जो विमानों ने जो उड़ान भरती होगी सभी का रजिस्ट्रेशन कैपेबल व्हील्स ने भी जो है वो मांगा है। और साथ ही साथ ये देखना है कि इतने दिनों के अंदर क्या रिपोर्ट जो है वो सारी निकल कर इस पर बाहर आती है, क्योंकि ब्लैक बॉक्स भी जो है वो मिलते हैं। रमेश कुमार विश्वास की जो अकेला जो एक इंसान जो है जो इस पूरी दुर्घटना के अंदर बच गया था, उसने भी बहुत सारी बातें बताई है। देखना है कि आगे रिपोर्ट क्या आता है और आगे क्या फैसला सरकार के द्वारा लिया जाता है। जी बिल्कुल, कुछ और इस वक्त हमें जानकारी मिल रही है। द सिविल एविएशन मिनिस्टर कंफर्म द ब्लैक बॉक्स has been recovered and currently there's an in-depth investigation underway as it holds extremely crucial findings. Jatin, official confirmation coming in from the civil aviation minister. The black box has been recovered. Has its scrutiny begun? हमें बताया था कि ब्लैक बॉक्स जो है वो फिलहाल जो है अब मिल चुका है, उसको रिकवर जो है वो कर दिया गया था। ऑफिशियल स्टेटमेंट जो नागरिक उड्डयन मंत्री है, सिविल एविएशन मिनिस्टर जो है राममोहन नायडू, उनका भी जो है वो आ चुका है कि ब्लैक बॉक्स जो है वो रिकवर जो है वो कर दिया गया है। और ब्लैक बॉक्स जो है उसी के माध्यम से जो सटीक जानकारियां है, अब तक तो जो है सिर्फ अंदाजा लगाया जा रहा था, लेकिन ब्लैक बॉक्स के माध्यम से ही अब बिल्कुल सटीक जो जानकारियां है वो निकलकर सामने आएगी कि क्या इसमें अकस्मात जो हुआ उसकी क्या वजह रही, क्या तापमान जो ज्यादा था उसकी वजह से क्या अकस्मात हुआ, या तो फिर और कोई घटना रही थी। विमान नीचे गिर रहा था, उसको बढ़ाने के लिए जो उसको जंप देने के लिए उसको जिस तरह से जो रेस आकार बढ़ाया गया उसकी वजह से विमान का पीछे का बलबा जो है वो नीचे की तरफ गया। क्या सारी चीजें जो निकलकर जो है वो सामने आके पावर कम हो रही थी, एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या था, वो सिर्फ अब तक अंदाजा लगाया जा रहा था। लेकिन अब जब ब्लैक बॉक्स जो है वो रिकवर कर दिया गया, उसकी में सारी डिटेल जो है वो निकलकर जो है वो सामने आएगी अब। जी जतिन, कुछ और इस वक्त बड़ी जानकारी हमें मिल रही है। मल्टीपल थियरीज आर क्रॉपिंग अप विद रिगार्ड्स टू द एयर इंडिया फ्लाइट 171 क्रैश. All of them are being thoroughly investigated, as stated during the Civil Aviation Ministry briefing. So Jatin, no conclusion has been drawn just yet. All the theories are being currently investigated. They are all on the table currently, Jatin, as the possible cause behind this crash. जी देखिए बिल्कुल पूरी जो जांच जो है फिलहाल अभी चाहे वो जो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंटल जो इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है, चाहे आईटी हो, चाहे सुरक्षा एजेंसी, सभी फिलहाल जो अकस्मात की जांच करने में जो है वो क्या किस
तरह से ये अकस्मात जो है वो हुआ होगा, क्लियरली अभी इसकी जो है वो अभी भी जो है वो बनाई जा रही है, क्या हुआ होगा किस तरह से, क्योंकि एक तो प्लेन जो है वो टेक ऑफ करता है और एक 40 सेकंड में ये प्लेन जो है वो क्रैश हो जाता है। सबसे पहले प्लेन जो है वो बाउंड्री वॉल से टकराया, बाउंड्री वॉल से टकराने के बाद जो बीजे मेडिकल कॉलेज का जो परिसर है, जो जहाँ पर मैच का जो भाग आया हुआ था, ऑक्सीजन 4 नाम की जो बिल्डिंग थी, जहाँ पर इंटर्न डॉक्टर रहते थे बीजे मेडिकल कॉलेज के, उसके साथ उसके परिवार भी रहते थे, उस जगह पर जो प्लेन गिरा, तो क्या आखिर जो हुआ होगा, ये सारी अभी जांच जो है वो सुरक्षा एजेंसी और एआई की भारत जो है वो अभी की जा रही है। जी बिल्कुल, कुछ और इस वक्त बड़ी खबर हमें मिल रही है। फॉलोइंग द क्रैश ऑफ एयर इंडिया फ्लाइट AY171, efforts are underway to retrieve parts of the damaged plane. Jatin, it's important that all parts of the damaged plane are recovered. Those efforts still continue. जी देखिए, बिल्कुल जो प्लेन के जितने भी जो डैमेज जो पार्ट थे वो फिलहाल जो है वो रिकवर, बहुत सारे पार्ट जो है वो एयर इंडिया के जो दुर्घटना जो हुई प्लेन उससे रिकवर जो है अभी कर दी गई। उन सारे पार्टों की जो है उससे भी जांच की जाएगी कि किस वक्त ये जो है टेक्निकल इसका पूरा जो है एनालिसिस किया जाएगा, पार्ट जो है वो कौन से पार्ट के अंदर क्या इश्यू आया था, किस वजह से ये पूरी उन्होंने बंद करना कर दिया था, क्योंकि जो पावर कम हो रही थी। तो शुरुआत में जब पावर जो है वो ठीक होगी तभी जो पायलट ने जो है वो टेक ऑफ किया होगा, लेकिन जैसे ही टेक ऑफ किया उसके बाद कैसे एकदम से पावर जो है वो कम हो गई, क्योंकि जो वीडियो है आपने भी देखा होगा, सबने देखा कि वीडियो में प्लेन जो है वो टेक ऑफ जो है बिल्कुल सही तरह से कर रहा था, लेकिन थोड़ा ही ऊपर जाते तुरंत ही जो है प्लेन नीचे की तरफ झुकने लगा था, स्टेप होने लगा था। और रमेश कुमार विश्वास नाम का भी जो बंदा है, जो एकमात्र जो यात्री पूरी घटना में जो है वो साक्षी रहा है, उसने बताया कि जैसे ही प्लेन ने उड़ान करी थी, कहीं का प्लेन जो है वो स्ट्रेक करना शुरू हो गया था, डगमगाने लगा था। शुरुआत में ही प्लेन थोड़ी देर के अंदर ही ग्रीन और व्हाइट लाइन जो है, व्हाइट और लाइट जो है वो अंदर जो है वो ब्लिंकिंग करने लगी थी, यानी कि कुछ तो उस समय जो है वो हुआ होगा कि जिसकी वजह से शायद अनाउंस भी शायद किया गया हो, लेकिन वो बातें अभी तक बताई नहीं गई है शायद। लेकिन हो सकता है कि ये पूरी डिटेलिंग जानकारी जो है वो ब्लैक बॉक्स के द्वारा जो है वो प्राप्त हो सकती है। एक और बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त, जतिन। The Chief Fire Officer of Ahmedabad Fire and Emergency Services, Amit Dongre, has reflected on the massive rescue operation after the Air India plane crash. He has said they saved at least 30 lives. He has stated, and I quote, "If we talk about rescue operation, then our team saved almost 30 persons. About 360 personnel were involved to control the fire. There are 19 fire stations here. Every fire station responded. Due to special equipment, we were able to get into the smoke and do rescue. The investigation is going on. One casualty was found today morning. Only after complete work will we leave the operation. It was a very sad incident. The team worked hard. They got support from everyone," quote unquote. So big statement coming in, Jatin, on the rescue operation from the Chief Fire Station Officer, talking about how they saved many lives and about how they worked through the thick fire and smoke. जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस तरह से जो आग लगी थी, तुरंत ही फायर के जवान जो है वो वहाँ पर पहुंच गए थे। आपने शायद अभी एक वीडियो आया था, उसमें आपने देखा होगा कि फायर के जवान जैसे ही आग लगी थी, अपनी जान की परवाह किए बगैर जो है वो तुरंत ही वो है आग के अंदर कूद गए थे और तुरंत ही सभी मैक्सिमम लोगों को निकालने की कोशिश जो है वो की गई। हालांकि पैसेंजर ट्रेन जो ट्रेन के अंदर तो जितने भी पैसेंजर थे तो वहीं पर जो है वो मौत हो गई थी। निकालने की कोशिश जो है वो अपनी जान की परवाह किए बगैर फायर मैनों ने जो है वो वहाँ पर पहुंच कर जो है वो कर दी। आसपास में तुरंत ही इमरजेंसी कॉल जो है वो घोषित कर दिया गया था। जितने भी आसपास के जो फायर ब्रिगेड है वहाँ से जो गाड़ियां हैं वो दमकल की वो तुरंत ही मंगा ली थी, तुरंत ही गाड़ियां आप पहुंच भी चुकी थी और बचाने की जो राहत बचाव की कामगिरी है वो तुरंत ही शुरू कर दी गई थी, क्योंकि एनडीआरएफ की टीम को आने में काफी समय लगा। आगे 14 घंटे बाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम जो है वो घटनास्थल पर पहुंची। जी बिल्कुल, Jatin, stay with us. As per a statement issued by the British High Commission of India, the UK has set up a reception centre in the Umaid Hotel to provide support and advice for families and friends of British nationals following the plane crash on the 12th of June. The UK reception centre in Ahmedabad airport will be open from 9 a.m. to 9 p.m. every day starting today.
So Jatin, the UK High Commission has set up a special center as well there for British nationals, their families, victims who were in the crash. जतिन, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी जी, बोलिए बोलिए, अभी आवाज आई। जतिन, मैं ब्रिटिश हाई कमीशन से जो खबर आई है उस पर पूछ रहा हूं आपसे। जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, जिस तरह से जो ब्रिटिश हाई कमीशन से जो 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 बैठक हुई है, जिसमें जो फिर सूचना दी गई है, ब्रिटिश हाई कमीशन के भी लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचे, क्योंकि तकरीबन ब्रिटिश नागरिक जो है वो तकरीबन 53 नागरिक ब्रिटिश हाई कमीशन के थे, ब्रिटेन के थे, इंग्लैंड के थे। तो ब्रिटिश हाई कमीशन के लोग जो है यहाँ पर आइए, उनके द्वारा भी फिलहाल जो है वो जांच जो है वो चल रही है। उनके जितने भी लोग हैं उनकी पूरी डिटेलिंग जो है वो यहाँ से जो है फिलहाल वो निकाली जा रही है। जी बिल्कुल। कुछ और इस वक्त बड़ी खबर हमें मिल रही है। Amidst tight security arrangements, blood samples for DNA are being collected at Ahmedabad Hospital, and from there these samples are being taken to the Forensic University in Gandhinagar. After receiving the report from their, bodies of the deceased will be handed over to their families. So the DNA samples being taken, that process continues today as well, Jatin. कुछ परिवार आज भी आ रहे हैं अपने DNA samples देने के लिए. Take us through what happens. So they give the DNA samples at the hospital. Those samples then are taken to Gandhinagar to a special center. Is that correct, Jatin? जिस तरह से जो डीएनए सैंपल है, डीएनए सैंपल परसों ही शाम को बोल दिया गया था कि डीएनए सैंपल सभी परिवारों से जो है वो मंगाए जाए, जितने भी लोग थे सभी लोगों के परिवारों से डीएनए सैंपल जो है वो मंगाए जाए, क्योंकि डीएनए सैंपल काफी लेने जरूरी थे, क्योंकि डीएनए टेस्ट के बगैर जो है बॉडी की शिनाख्त नहीं की जा सकती थी। ऐसी कंडीशन पे जो है वो बॉडी की, ऐसे में अब डीएनए सैंपल जो है वो लगभग परसों शाम तक को भी काफी आए थे, और कल मैक्सिमम जो डीएनए सैंपल है वो जो परिवारजन है वो आकर जो है वो दे गए थे। अभी भी कुछ परिवार ऐसे जो रह गए थे, वो अभी भी बीजे मेडिकल जो कॉलेज है वहां पर अपने मृतकों जो अपने परिजन की जो डीएनए सैंपल है वो देने के लिए पहुंच रहे। डीएनए सैंपल जितनों की आ चुकी है, इन सभी का डीएनए टेस्टिंग जो है वो सैंपलों को यहाँ से लेकर जो है वो एफएसएल गांधीनगर जो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है वहां पर ले जाया जा रहा है, और वहां पर उसका टेस्टिंग जो है किया जाएगा। और टेस्टिंग होने के बाद जैसे ही रिपोर्ट उसकी आ जाएगी, बॉडी की शिनाख्त हो जाएगी, उसको तुरंत ही जो है जो परिवारजन है उनको कॉन्टेक्ट किया जाएगा, और उनको अपने परिवारजन की जो बॉडी है वो उनको जो है वो सौंप दी जाएगी।